Good morning, students. Welcome back to Grammar Learning. In last lecture, I explained you first part of chapter number 29, some useful phrases and idioms. I explained you what is an idiom and what is the use of idioms in language. Idioms makes the language ornamental, figurative, impressive. And idiom is a group of words which, when taken together, they have different meanings from the individual meaning of each word. So we cannot know the meaning of idioms without learning it by heart or without using in our language. So here this is an effort to teach you the idioms. I explained you the idioms 1 to 15, and in next exercise, in exercise 1, we have used these idioms in different sentences. I hope you understood this one. In exercise 2, some more idioms are given and their meanings are given in the matching form. We have also done exercise 2. We have matched the idioms with their meanings. I hope you have learned the idioms. Now today I will start with exercise 3, which is also matching. Here some phrasal expressions are there and you have to match them with their meanings. Okay, so let's start exercise number 3. First one is a red letter day. रेड लेटर डे यानी हम लोग जैसे बोलते हैं ना, सुवर्ण अक्षरों से लिखा हुआ दिन. ओके, उसी तरह से इंग्लिश में यूज़ होता है रेड लेटर डे एंड इट मीन्स मेमोरेबल, red letter day means a memorable day. Understood? So here one number. Then 2 number is out of order. What is the meaning of out of order? You might have listened people speaking the lift is out of order. It means not in working condition. Understood? Out of order. Then the third one is off and on. What does it mean? Off and on means now and again, बार बार. Fourth one is with open arms. With open arms, हम लोग बोलते हैं ना, they welcomed us with open arms. हाथ फैलाकर वेलकम करना है ना, उसे बोलते हैं a warm welcome. What is the meaning of with open arms? A warm welcome. Okay. Next one is 5 number, from hand to mouth. From hand to mouth यानी कि poverty. Poverty मतलब कि गरीबी. Understood? Then next one is 6 number, to keep pace with. To keep pace with. Pace यानी कि कुछ दूरी बना कर रखना. तो to move at an equal speed. ओके, यानी कि हमारा पेस किसे कहते हैं? हम एक कदम रखते हैं, उसके बाद दूसरा कदम जो रखते हैं, when we take the steps, there is the equal distance between the two steps and it is called pace. Okay, so what does it mean? To move at an equal speed. Then 7 number is to give oneself airs. It means to feel or be self-important. To feel or be self-important. Then 9 number is a good turn. Nine number is a good turn. What does it mean? It means an act of kindness. Okay, an act of kindness. And 10th number is look forward to. तो to wait with pleasure. Looking forward to your reply, ऐसा बोलते हैं ना.
कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसका मीनिंग होता है टू वेट विथ प्लेजर। ओके, खुशी के साथ हम लोग वेट कर रहे हैं उसकी। अंडरस्टूड द फ्रेजल एक्सप्रेशंस एंड देयर मीनिंग्स? ओके, राइट डाउन इट प्रॉपरली। ओके, आई थिंक 8 नंबर इज रिमेनिंग। गिव एंड टेक, द मीनिंग इज ऑब्लाइजिंग ईच अदर म्यूचुअली, यानी कि हम लोग अगर किसी की हेल्प करेंगे तो सामने हेल्प मिलेगी हमें। गिव एंड टेक, कुछ दोगे तो कुछ पाओगे। ओके, इट मीन्स ऑब्लाइजिंग ईच अदर म्यूचुअली। अंडरस्टूड? सो दैट्स इट फॉर एक्सरसाइज 3. नाउ एक्सरसाइज 4. Here some idiomatic expressions are given. You have to explain them briefly in the space given. जो स्पेस दी है ना उसमें आपको उसके मीनिंग्स लिखने हैं। So the answers are given. I have given you the answers in this lecture only. The first one is call off. I call off the meeting. Okay, it means to cancel. Next one is to face the music. It means to face a difficult situation. Then to fight shy off. To fight shy off means to avoid. Then next one is call upon. It means to visit. Then pull through. It means to get better after a serious illness. Okay, to get better after a serious illness, उसे बोलते हैं pull through. Then 6 number is to go to the dogs. It means to get into a very bad state. To go to the dogs means to get into a very bad states. नेक्स्ट वन इज़ अ फेयर वेदर फ्रेंड. फेयर वेदर यानी बहुत अच्छा माहौल है उस टाइम का फ्रेंड, यानी कि सुख के दिन है तब कोई फ्रेंड है, फिर दुख के दिनों में वो नहीं है, मुसीबत के समय में नहीं है. इट मीन्स अ फॉल्स फ्रेंड. अ फॉल्स फ्रेंड. अंडरस्टूड? देन नेक्स्ट वन इज टू कीप वंस फिंगर्स क्रॉस्ड. बोलते हैं लेट्स कीप द फिंगर्स क्रॉस. लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस्ड मीन्स टू होप दैट योर प्लान्स विल सक्सीड. ओके, टू होप दैट योर प्लान्स विल सक्सीड. द 9th नंबर, होल्ड बैक. What is the meaning of hold back? To prevent something from moving. To prevent something from moving. It is called hold back. Okay, किसी को मूव करने से रोकना, होल्ड करके रखना, पकड़ के रखना. Okay, 10 number is tell upon. It means to affect someone's health or mental state. ओके, यानी कि किसी की हेल्थ या मेंटल स्टेट है उसे अफेक्ट करना. अंडरस्टूड? आपको ये सारे मीनिंग्स हैं वो लोग टेक्स्ट बुक में ही लिखने हैं. सफिशिएंट प्लेस इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, सो नो नीड टू राइट इन नोटबुक. ओके, नाउ लेट्स लर्न सम मोर यूजफुल फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. द फर्स्ट वन इज बैड ब्लड. Bad blood. It means unfriendliness or enmity between two people or families. They have bad blood means they have the enmity, the unfriendliness. Then second one is bad news travels fast. यानी कि ख़राब न्यूज़ हैं, ख़राब न्यूज़ है वो जल्दी स्प्रेड होते हैं. इट मीन्स बैड न्यूज़ स्प्रेड्स मोर क्विकली देन गुड न्यूज़. अच्छी बातें तो कोई जल्दी से नहीं बताएगा, लेकिन ख़राब चीज़ें बातें हैं, न्यूज़ है, वो पहले बताएंगे. ओके, देन कम टू अ बैड एंड. इट मीन्स सेड अबाउट समवन हु लीड्स एन अनहेल्दी लाइफ एंड फेसेस डिस्ग्रेस. यानी कि बुरा अंत होना. कम टू अ बैड एंड मीन्स बुरा अंत होना. किसी सेड अबाउट समवन हु लीड्स, किसी के बारे में ऐसे बोलना कि वो बहुत ही अनहेल्दी
लाइफ जी रहा है और उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. दैट इज़ कॉल्ड कम टू अ बैड एंड. अंडरस्टूड? नेक्स्ट वन इज बिग डील. बिग डील का मीनिंग होता है टेरिफिक, ग्रेट, सेड व्हेन वन इज नॉट इम्प्रेस्ड. ओके, जब कोई इम्प्रेस नहीं होता है तब हम लोग इसे इम्प्रेस करने के लिए बोलते हैं ग्रेट डील, बिग डील. इट मीन्स ग्रेट. देन नेक्स्ट वन इज अ बिग माउथ, यानी कि समवन हु बोस्ट और एग्जैजरेट्स. यानी कि बोस्ट मतलब कि अपनी खुद की ही बड़ाई हाँकना. ओके, डिंगे हाँकना अपनी खुद की. एग्जैजरेट्स यानी बड़ा चढ़ाकर बोलना. ओके, फॉर एग्जाम्पल समवन हैज़ अ बिग माउथ मतलब कि वो हमेशा अपनी अपनी गाता रहता है. ओके, अपने आप को बहुत ज़्यादा ओवर करके बताता है. सो वी कैन से वेदांत हैज़ अ बिग माउथ. ओके, इट मीन्स उसका मुंह बड़ा है ऐसा नहीं है, बट ही यूज्ड टू टॉक अबाउट हिमसेल्फ ओनली. Okay, 6th number, in a big way. In a big way, it means on a large scale. Then a dead end, the road that doesn't lead anywhere, a stage where no further progress can be made. यानी कि जहाँ से तरक्की होने के, प्रोग्रेस होने के कोई चांस नहीं है. That is called a dead end, a stage where no further progress can be made. जहाँ पर आकर इंसान स्टॉप हो जाता है. There is no lead anywhere. Okay, next one is dead silence. Dead silence, a total unbroken silence. यानी कि जिस साइलेंस को हम तोड़ नहीं सकते वैसी साइलेंस. सपोज किसी के घर में कोई बैड इंसिडेंट हुआ है. ओके, तो उस घर में कितनी साइलेंस होती है, उस साइलेंस को कोई तोड़ नहीं सकता है. दैट इज़ कॉल्ड अ डेड साइलेंस. ओके, नेक्स्ट वन इज ओवर माई डेड बॉडी. ओवर माई डेड बॉडी, उसका मीनिंग है व्हेन द स्पीकर इज़ वेरी मच अगेंस्ट समथिंग. ओवर माई डेड बॉडी है वो कब बोला जाता है? व्हेन द स्पीकर इज़ वेरी मच अगेंस्ट समथिंग. आप लोगों ने सुना होगा कि अगर तुम्हें ये करना है तो तुम्हें मेरी लाश पे से गुज़रना होगा. ओके, तो इट इज़ सेम लाइक ओवर माई डेड बॉडी, मतलब कि जब किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट में हैं, तो सामने वाले के लिए ऐसा बोला जाता है. ओके, यू हैव टू पास ओवर माई डेड बॉडी. ओके, मेरी लाश पे से गुज़रना होगा. देन 10 नंबर, गुड फॉर नथिंग. ये बहुत सारी बार हम लोग यूज़ करते हैं, टीचर्स भी यूज़ करते हैं. ओके, समटाइम्स योर फ्रेंड्स, समटाइम्स योर पेरेंट्स ऑल्सो यूज़ दिस फ्रेज. गुड फॉर नथिंग मीन्स लेज़ी, अनरिलायबल, हैविंग नो गुड क्वालिटीज़. कुछ भी करने के लायक नहीं है, ऐसे बोलते ना. देन नेक्स्ट वन इज़ गुड रिडेंस. इट मीन्स feeling of relief when one gets rid of an unpleasant person or something unwanted. यानी कि किसी चीज़ से unpleasant person या unwanted thing से relief मिलना. Then next one is hard to please. Hard to please, it means a person who is very critical and has a very high standard. यानी कि ऐसा इंसान जिसे खुश करना बहुत मुश्किल होता है. ओके, सो अ पर्सन हु इज़ वेरी क्रिटिकल और हैज़ अ वेरी बिग स्टैंडर्ड. नेक्स्ट वन इज़ हार्ड ऑफ हियरिंग. इट मीन्स पार्टली डेफ. डेफ यानी बहरा, है ना. हार्ड ऑफ हियरिंग, सुनने में बहुत मुश्किल होती है, उसे क्या बोलते हैं? पार्टली डेफ. देन अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू ओवरकम. लेट मी गिव यू वन एग्जाम्पल. टू
टू लीव इन दिस सिचुएशन इज़ अ हार्ड नट टू क्रैक, यानी कि जो अभी की सिचुएशन चल रही है, कौन सी सिचुएशन, कोविड की जो सिचुएशन चल रही है, तो उसमें ज़िंदा रहना वो एक हार्ड नट है टू क्रैक. It means it is a difficult problem to overcome. We cannot overcome the problems. It is very difficult. Okay, next one is high and dry. It means abandoned, ignored, isolated. Okay, high and dry मतलब कि ignored, isolated, यानी कि जिसे इग्नोर कर दिया जाता है, अकेला छोड़ दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड हाई एंड ड्राई. नेक्स्ट वन इज इन हाई प्लेसेस. इन हाई प्लेसेस, व्हाट इज द मीनिंग? फ्रेंड्स और पीपल इन टॉप लेवल पोजिशंस, मीन्स देयर रिलेटिव्स आर इन हाई प्लेसेस, मतलब कि दे आर इन टॉप लेवल पोजिशंस. अंडरस्टूड? Next one is it's high time. When something must be done without more delay. Okay, यानी कि किसी चीज़ में अब डिले नहीं चलेगा, वो विदाउट एनी डिले वो चीज़ होनी चाहिए, दैट इज़ कॉल्ड हाई टाइम. देन नेक्स्ट वन इज़ इन द लॉन्ग रन, मीन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड. ओके, यानी कि ज़्यादा लंबा समय होगा तो वो तुम्हारे लिए सेफ होगा. इन द लॉन्ग रन द इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट विल गिव यू प्रॉफिट. ओके, इट मीन्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम द इन्वेस्टमेंट विल गिव यू प्रॉफिट. देन नेक्स्ट वन इज इन द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट. In the long and short of it means essential facts of a matter, यानी कि किसी भी मैटर का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट. ओके, नेक्स्ट वन इज अ चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक. अ चिप ऑफ or the old block, it means son or daughter who is very much like his or her father in character and temperament. Okay, यानी कि सन या डॉटर, किसी की संतान जो बहुत ज़्यादा उसके फादर जैसी है, कैरेक्टर में भी, टेम्परामेंट में भी, नेचर वाइज एंड कैरेक्टर वाइज दे आर सेम एज देयर फादर, इज कॉल्ड चिप ऑफ. Mahesh is a chip of his father. Okay, then an old hand. An old hand. ये आ गया है ना पहले, someone with a lot of experience, I explained. Next one is a shortcut. It means a quicker or easier way of going somewhere or doing things. Okay, यानी कि कोई चीज़ करने का आसान तरीका. हम पूछते हैं ना शॉर्टकट कौन सा है, पूछते हैं ना. ओके, अ शॉर्ट नोटिस विथ लिटिल वार्निंग. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल एग्ज़ाम्स, अभी आपको पता है कि एग्ज़ाम्स जून में हैं. अगर आपको अभी बता दिया जाए कि नेक्स्ट वीक से एग्ज़ाम स्टार्ट होगी मंडे से, तो इट इज़ अ शॉर्ट नोटिस, मीन्स विथ लिटिल वार्निंग. ओके, बट एग्ज़ाम इज़ देयर इन जून ओनली, जून में ही है, डोंट वरी. एज थिक एज थीव्स, तो वेरी फ्रेंडली, शेयरिंग सेम इंटरेस्ट, बहुत फ्रेंडली, एक दूसरे के साथ सेम इंटरेस्ट शेयर करना. ओके, नेक्स्ट वन इज़ थ्रू स्पिक एंड स्पैन. through thick and thin, it means through good times and difficult times. thick and thin मतलब कि good times and difficult times, अच्छा समय और ख़राब समय दोनों में से गुजर चुके हैं, उसे बोलते हैं through thick and thin. next one is
वैनिश इनटू द एयर, इट मीन्स डिसअपियर विदाउट ट्रेस। तो बोलते हैं ना हवा में छू हो गया, छू मंतर हो गया, ऐसा बोलते हैं ना, उसे बोलते हैं वैनिश इनटू द एयर इन इंग्लिश। इट मीन्स डिसअपियर विदाउट ट्रेस, कोई भी साइन प्रूफ के बिना कोई गायब हो गया, डिसअपियर विदाउट ट्रेस। नेक्स्ट वन इज एट द एंड ऑफ वंस टीथर, टीथर, तो अ पोजिशन वेयर नो मोर पेशेंस इज लेफ्ट, ऐसी कंडीशन, ऐसी पोजीशन जहाँ पर ज़्यादा पेशेंस है, अब बाकी नहीं बची है, धीरज है वो कम पड़ गई है, छूट गई है। ओके, नेक्स्ट वन इज एट अ लूज हैंड, मीन्स हैविंग नथिंग टू डू, कुछ भी करने को ना होना। देन नेक्स्ट वन इज बोथ, मेक बोथ एंड्स मीट, यानी कि बोलते हैं दोनों छेड़े को मिलाना, तो गुजराती में बोलते हैं ना बन्ने छेड़ा भेगा करिए छी, है ना। इट मीन्स समहाउ मैनेज विद द मीगर मनी वन हैज़, यानी बहुत कम पैसों में गुजारा करना। देन नेक्स्ट वन इज साइन ऑन द डॉटेड लाइन, मीन्स अग्री टू डू समथिंग विदाउट एनी कंडीशंस, कोई भी कंडीशन के बिना कोई भी चीज़ करने के लिए अग्री हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड साइन ऑन द डॉटेड लाइन। नेक्स्ट इज रीड बिटवीन द लाइन्स, मैनी अ टाइम्स आई ओनली यूज़ दिस फ्रेज, मैं भी खुद ये फ्रेज यूज़ करती हूँ। यू हैव टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू अंडरस्टैंड द एक्चुअल मीनिंग। ओके, रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब कि अंडरस्टैंड और सेंस मोर देन द एक्चुअल वर्ड्स, जो एक्चुअल वर्ड्स दिए उससे ज़्यादा समझने की कोशिश करना, दैट इज़ कॉल्ड रीड बिटवीन द लाइन्स। No laughing matter, it means something very serious. No laughing matter means something very serious, ये कोई हंसने की बात नहीं, it means something very serious. A matter of time means bound to happen sooner or later, यानी कि होने ही वाला है, आज नहीं तो कल, it is a matter of time. Okay, next one is to give someone a piece of one's mind, means scold or reprimand someone, किसी को बहुत बुरी तरह से scold करना, उसको बोलते हैं ना insult करना, okay, भला बुरा कहना। Then next is make up one's mind, means to take a decision. I made up my mind, okay, यानी कि मैंने अपना मन बना लिया है, टू टेक अ डिसीजन, आई डिसाइडेड, अंडरस्टूड। देन आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, यानी नज़रों से दूर ख्यालों से दूर। इट मीन्स पीपल और थिंग्स हु कैनॉट बी सीन और आर फार अवे आर सून फॉरगॉटन, जिस इंसान से हम लोग बहुत दूर निकल चुके हैं, जो बहुत दूर हैं, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, उनके चांसेस भूलने के ज़्यादा होते हैं, हम ऐसे इंसान को ज़्यादा लंबे समय तक याद नहीं रख सकते। ओके, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। देन ये कैसे यूज़ करोगे फ्रेज में, सपोज़ किसी ने आपसे पूछा कि आपके ओल्ड फ्रेंड्स हैं, पुरानी स्कूल के ओल्ड फ्रेंड्स का कांटेक्ट है, तो आप बोल सकते हो आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। ओके, अब मिलते नहीं है तो इतना कांटेक्ट भी नहीं है, इट मीन्स दैट। देन गो वंस ओन वे, मतलब कि एक्ट इंडिपेंडेंटली, आई गो माई ओन वे, आई गो माई ओन वे मतलब कि आई एक्ट एज आई वॉन्ट, आई एक्ट इंडिपेंडेंटली। ओके, किसी के प्रभाव में आकर या किसी के दबाव में आकर मैं एक्ट नहीं करती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड टू गो माई ओन वे। देन इन अ वर्ड मीन्स ब्रीफली, है ना, बहुत कम शब्दों में ब्रीफली। वर्ड फॉर वर्ड मीन्स लिटरली, हर एक वर्ड के लिए, एक एक वर्ड के लिए। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड मीन्स वंडरफुल, किसी का एकदम ब्यूटीफुल पिक्चर या बहुत अच्छी चीज़ देखकर हम लोग बोलते ओ अमेजिंग, इट इज़ आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी वंडरफुल। ओके, ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड मीन्स वेरी हैप्पी। I got first rank in board exams, that's why I am on top of the world, it means I am very happy.
all and sundry, it means everybody. Okay, believe it or not means it is true whether you believe or not believe, or you disbelieve it. तुम मानो या ना मानो, बिलीव इट और नॉट. कट इट आउट मतलब कि स्टॉप इट. प्ले इट बाय द ईयर मीन्स एक्ट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. ओके, जैसी सिचुएशन है उस तरह से एक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्ले इट बाय द ईयर. नेक्स्ट वन इज लाइक इट और लंप इट. लाइक इट और लंप इट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, एक्सेप्ट द सिचुएशन. अच्छी लग रही है कि नहीं, बट यू हैव टू एक्सेप्ट द सिचुएशन. देन रब इट इन मीन्स कंटिन्यू टू एम्फोसाइज समथिंग, किसी चीज़ पर एम्फोसाइज देना, कंटिन्यू रखना. रन फॉर इट मीन्स रन फास्ट टू गेट आउट ऑफ डेंजर, डेंजर से बाहर निकलने के लिए फास्ट रन करना. देन टू गुड टू बी ट्रू, सो गुड, वो आपने एक एग्जाम्पल देखा होगा, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बी ट्रू. ओके, द न्यूज़ इज़ टू गुड टू बिलीव, ऐसा भी है एक सेंटेंस. इट मीन्स द न्यूज़ इज़ सो गुड दैट वन कैन हार्डली बिलीव इट. द नेक्स्ट वन इज़ अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, यानी छिपे हुए दुआ होना. अ मिसशेप दैट टर्न्स आउट टू बी फॉर्चुनेट इन द एंड, ऐसी दुर्घटना जो एंड में तो हमारे लिए अच्छी रही है, दैट इज़ कॉल्ड अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज. यानी डिस्गाइज मतलब छुपा वेश बोलते हैं ना, उसमें. चाइल्ड्स प्ले मीन्स ईजी टास्क. if the work is very easy, we can say it is child's play, or it is not child's play to get good rank in exam. Okay, a drop in the ocean means a small amount. समुंदर में एक बूंद के बराबर है, ऐसा बोलते हैं ना. It means a very small amount. A jack of all trades means a person capable of doing many things but no great expert of anything. बहुत सारी चीज़ें करता है इंसान लेकिन एक्सपर्ट किसी में भी नहीं है. It is called a jack of all trades. The next one is at a stone's throw means very near, at a short distance. Then a hole and corner business means very secretive dishonest dealing, यानी कि जो illegal work होता है, that is called a hole and corner business. A wet blanket, a person who spoils a jolly atmosphere. ओके, ऐसा इंसान जो बहुत जॉली एटमॉस्फेयर हो रहा है उसे वो स्पॉइल कर देता है, तो उसे कहा जाता है अ वेट ब्लैंकेट. सो हियर इन दिस लेक्चर आई एक्सप्लेन्ड यू द फ्रेजेस एंड इडियोमेटिक एक्सप्रेशंस. इन नेक्स्ट लेक्चर आई विल स्टार्ट विथ इडियोमेटिक पैर्स, एंड व्हाट यू हैव टू डू, you have to learn all these idiomatic expressions and phrasal words and try to use in your daily conversation. Okay, so that's it for this lecture. We will meet in next lecture with some more topics. Till then, bye.